ہم خدا کے کلام کی رسپیکٹ کے لیے کھڑے ہوں گے۔ فلیپیوں 4 باب 6 آیت۔ فلیپین چیپٹر 4 ورس 6۔ کسی بات کی فکر نہ کرو بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں۔ Do not be anxious about anything, but in every situation, by petition, prayer, and request, with thanksgiving, present to your God۔ دعا کریں گے۔ قدوس آسمانی باپ، ہم تیرا شکر تیری تعریف کرتے ہیں آج کے دن کے لیے جب تیرے حضور میں آئے ہیں، ایک خاندان ایک کلیسیا کی صورت میں۔ یسوع نام سے اپنے کرام کو نازل فرما کر ہماری ضرورت کو پورا کرنا۔ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے مقدس جلالی یسوع نام سے، آمین۔ پلیز تشریف رکھیں۔ جو آج کا میرا مضمون ہے وہ ہے 3 types of prayers۔ ہم دعا کرتے ہیں، ہمارے بہت سارے ڈیمانڈز ہوتی ہیں، اس کے لیے پریئر کرنی ہے۔ اس کے لیے آج ہم سیکھیں گے کہ 3 قسم کی دعائیں ہیں۔ جو پہلی ہے، جس طرح ہم نے دیکھا، درخواستیں دعا منت شکر گزاری کے ساتھ پیش کی جائیں۔ ٹائپ آف پریئرز۔ ویسے تو جو پریئرز ہے، دعا ہے، اس کی بہت سی اقسام ہیں، لیکن 12 کو میں مینشن ضرور کروں گا۔ ایڈوریشن، خدا کی بڑائی کرنا، یہ بھی ایک پریئر ہے۔ فیلوشپ، کئی ہیں جنہوں نے عبادت میں ہی آنا ہے، یہ بھی ایک پریئر ہے۔ پٹیشن، درخواست کرنا خدا سے دعا کے لیے۔ انٹرسیسری پریئرز، آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ پروفیٹک پریئر، جب آپ نبوتی پریئر کرتے ہیں۔ ریکویسٹنری پریئر، جب آپ کسی سے درخواست کرتے ہیں کہ میرے لیے پریئر کی جائے۔ وارفیئر پریئر، یہ ہے جب ابلیسی قوتوں سے مقابلہ آپ کرتے ہیں، اس کے لیے دعا جو کی جاتی ہے۔ ریپینٹنس، توبہ کے لیے پریئر کرنا۔ کنفیشن، گناہوں کے اقرار کے لیے پریئر کرنا۔ تھینکس گیونگ، شکر گزاری کے لیے پریئر کرنا۔ اور پھر اس کے ساتھ ہے بلیسنگ، اگر خدا نے کوئی برکت دی ہے اس کے لیے پریئر کرنا۔ اور میڈیٹیشن، جب آپ چپ چاپ اپنے کمرے میں علیحدگی میں خدا سے بات کرتے ہیں، میڈیٹیشن۔ آج 3 ہیں جن کے بارے ہم دیکھیں گے۔ پہلی جو ہے، جو پٹیشنز ہے، پٹیشنری پریئر اس کو کہتے ہیں۔ پٹیشن درخواست کو کہتے ہیں، اور کیا لکھا ہے؟ شکر گزاری کے ساتھ پیش کی جائیں۔ کوئی بھی ہم نے پریئر کرنی ہے، چاہے وہ سنی جاتی ہے یا نہیں، اس کا جواب آتا ہے یا نہیں، ہر پریئر لکھا ہے، پالوس رسول کہتا ہے شکر گزاری کے ساتھ کی جائیں۔ جو پہلی ہے پٹیشن، میننگ آف پٹیشن جو ہے وہ ہے درخواست، التجا کرنا، عرض، التماس، گزارش۔ کوئی بھی یہاں USA میں بلڈ ریلیشن کو جب پیپر فائل کرتا ہے تو کہتے ہیں جی اس کی پٹیشن کی ہوئی ہے ہم نے، تو یہ درخواست آپ نے گورنمنٹ سے کی ہے کہ میری بہن یا میرا بھائی یا ماں یا باپ یا میری بیوی یا خامد وہ اس ملک میں آئے، تو یہ پٹیشن ہے۔ پہلی پریئر جو ہے وہ پٹیشن ہے، اور کوئی بھی جو پٹیشن والی پریئر ہے وہ رائٹ وے جواب نہیں آتا۔ جو درخواست کی جاتی ہے اس کے لیے ایک ٹائم ہے۔ USA میں جیسے ہسبینڈ وائف کے لیے ایک علیحدہ ٹائم ہے، بہن بھائیوں کے لیے فرق ٹائم ہے، ماں باپ کو بلانے کے لیے فرق ٹائم ہے۔ اس لیے ہر چیز کے لیے چونکہ انہوں نے بھی ٹائم رکھا ہے، خدا کا بھی ایک ٹائم ہے آپ کو آنسر دینے کا۔ جو پٹیشنری پریئرز ہوتی ہیں وہ درخواست ہے، وہ ایک عرضی ہے، التجا ہے، آپ نے اس کے حضور کی ہے، جواب اس نے جب خدا نے چاہنا ہے تب آنا ہے۔ کئی بار ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ
क्यों नहीं इस बात का हमें जवाब, क्यों मेरे लिए ऐसा होता है, अभी मैं इसी सिचुएशन को दुआ से चेंज कर सकता हूं, कर सकती हूं, आप नहीं कर सकते। पिटिशनरी प्रेयर जो है वो खुदा का जब प्लान है तब आपको उसका जवाब मिलना है। फॉर्मल रिटन रिक्वेस्ट टिपिकली साइंड बाय मैनी पीपल, ये पिटिशन है। अपीलिंग टू अथॉरिटी विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर केस, कोई भी आपका एक खास कोई भी केस है उसके लिए आपने दुआ की दरख्वास्त करना। Petition refer to a formal prayer when believer ask for specific need and desire, जब आपकी कोई खास दरख्वास्त है, खास जरूरत है, उसके लिए दुआ की इल्तिजा करना। Petitionary prayer is a request can be for ourselves as well as for others. ये ऐसी दुआ है जो अपने लिए भी आप खुदा के हुजूर रख सकते हैं और दूसरों के लिए भी पिटिशनरी दुआ जो है वो कर सकते हैं। पिटिशनरी प्रेयर कैन नॉट बी डिमांडेड, ये डिमांड नहीं की जा सकती। कुछ हैं पेंटिकॉस्टल जिनको होता है कि मैंने ये कह दिया है अब खुदा करे ही करेगा, खुदा ने नहीं करना, आप पेंटिकॉस्टल हो या छत्तीकॉस्टल हो, जब खुदा का वक्त है तब उसने दुआ का जवाब देना है, जो पिटिशनरी प्रेयर है। इसलिए बी केयरफुल, कई बार हम एक हद है, लिमिट है, उससे बाहर निकल कर चीजों को या बातों को करते हैं, वो खुदा के कलाम के मुनाफी है। पहली बात जो पहला पॉइंट है वो है पिटिशनरी प्रेयर, और ये क्या है? पहला तिमोथियस दूसरा बाब पहली और दूसरी आयत, फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 1 and 2 क्या लिखा जी? बस मैं सबसे पहले ये नसीहत करता हूं, आई अर्ज यू, सबसे पहले मैं ये नसीहत करता हूं, क्या है? कि मुनाजातें और दुआएं और इल्तिजाएं और शुक्रगुजारियां सब आदमियों के लिए किए जाएं। किन के लिए? सब आदमियों के लिए की जाएं। बी मेड फॉर ऑल पीपल। पिटिशनरी प्रेयर जो है बी मेड फॉर ऑल पीपल, और फिर अगली आयत है, दूसरी आयत, बादशाहों और सब बड़े मर्तबा वालों के वास्ते, इसलिए कि हम कमाल दीनदारी और संजीदगी से अमनो आराम के साथ जिंदगी गुजारें। पहला हवाला। दूसरा इफिसियों 6 बाब 18-19 वर्ष में लिखा है, एफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 18 and 19, और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो और इसी गरज से जागते रहो। आगे सुनिए, और दूसरा किसके लिए दुआ करनी है? कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिलानागा दुआ किया करो, और मेरे लिए भी, ताकि बोलने के वक्त मुझे कलाम करने की तौफीक हो। तीसरा पॉइंट, जिससे मैं खुशखबरी के भेद को दलेरी से जाहिर करूं। और आस्तर मलका जो है, एस्टर चैप्टर 5 वर्स 7 and 8 में लिखा है, आस्तर ने जवाब दिया, मेरा सवाल और मेरी दरख्वास्त ये है। आस्तर जो है उसने भी पिटिशन फाइल की है, चाहे वो बादशाह की मलका है उस वक्त। अगर मैं बादशाह की नजर में मकबूल हूं और बादशाह को मंजूर हो कि मेरा सवाल कबूल करे और मेरी दरख्वास्त पूरी करे, तो बादशाह और हमान मेरे जश्न में जो मैं उनके लिए तैयार करूंगी आए, और कल जैसा बादशाह ने अरशाद किया है मैं करूंगी। पिटिशनरी प्रेयर जो है, इसको मेरे अजीजों हम बहुत लाइट लेते हैं। पिटिशनरी प्रेयर की जो पहला है, ए, सब आदमियों के लिए की जाए, और प्रेयर आप दिल में ग्रज रखकर, आप दूसरों के खिलाफ नफरत रखकर नहीं कर सकते। सब आदमियों के लिए पिटिशनरी प्रे की जाए। और आगे लिखा है, बादशाहों और बड़े मर्तबा वालों के लिए कब की है?
हम हर रोज अपने बच्चों के लिए दुआएं करते हैं, अपने खानदान के लिए, बीवी के लिए, इसके लिए, उसको ये देते। कब लास्ट टाइम मैंने और आपने अपने प्रेसिडेंट के लिए दुआ की है? कब मैंने और आपने जो बड़े मर्तबा वाले हैं उनके लिए दुआ की है? ये पिटिशनरी प्रेयर हमने स्किप की हुई है, क्योंकि हमें टीच किया गया है कि खुदावंद से हमने बस मांगना ही है और वो हमें देगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआएं सुनी जाएं तो उसका नंबर 1 है, सब आदमियों के लिए दुआएं की जाएं, बादशाहों और बड़े मर्तबा वालों के लिए, ताकि अमन और सुकून से रह सके। हम अमन और सुकून के साथ इस मुल्क में रहना चाहते हैं, लेकिन इस मुल्क के लिए कभी हम प्रेयर नहीं करते। इसमें जो बरकते हैं उसके लिए हम दुआ नहीं करते। जो प्रेसिडेंट पूरी वर्ल्ड को हैंडल करता है उसके लिए कब मैंने और आपने दुआ की है? पिटिशनरी प्रेयर दूसरों के लिए की जाती है। और पौलुस रसूल कहता है सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा एवरीडे दुआ किया करो। जितने भी खुदा के लोग हैं उनके लिए दुआ करो। हमने खुदा के लोगों के नुक्स निकालने होते हैं दुआ के बारे। आपकी दुआ नहीं सुनी जा सकती अगर आप इस कुलियों को नहीं अपनाते कि दुआ कैसे करनी है और किसके लिए करनी है। और फिर लिखा है सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ किया करो। और पौलुस रसूल आगे कहते हैं मेरे लिए भी। आप जानते हैं कि पौलुस रसूल जो है that was a second Christ, वो दूसरा मसाया था। हर एक बात जो यीशु मसीह ने की इस शख्स की जिंदगी में से हुई है। और वो कहता है मुझे भी प्रेयर की जरूरत है। कितने हैं जो अपने पास्टर्स के लिए प्रेयर करते हैं? हाउ मेनी? गॉड ब्लेस यू। सब ताली बजाइएगा इनके लिए, ताली बजाइएगा। पिटिशनरी प्रेयर। और पौलुस रसूल कहता है मेरे लिए भी दुआ करो, ताकि जब मैं उसके वेदों को जाहिर करूं, उसकी खुशखबरी को सुनाऊं, तो मुझे दलेरी हो कि मैं जो बात हक है उसको कह सकूं। और यही पिटिशनरी प्रेयर जो है आस्तर ने की है, उसने भी दरख्वास्त की है। अक्सवीरियस बादशाह का दौर है और ये ऑलमोस्ट एंड है जब यहूदी कौम जो है उनको वापस भेज दिया गया था। 127 सूबों पर इसकी हुक्मरानी थी। जैसे आज यूएसए में 150 स्टेट हैं, इसी तरह अक्सवीरियन बादशाह के दौर में 127 सूबों पर इसकी हुकूमत है। और क्या होता है कि ये तीसरा साल जब हुआ है, जितने भी दूसरे ममालिक इसके अंडर हैं सबको दावत देता है। जितने मुशीर हैं, किंग हैं, बादशाह हैं, कोई भी है बड़े रुतबे वाले, उनको बुलाता है कि जश्न में शामिल हो। और फिर लिखा है कि ये पार्टी 6 महीने तक चलती रही है। आखिरी 7 दिनों में इसने जब वाइंड अप करना है तो इसने कहा कि मेरी बीवी जो है, उसने ये सारे महीनों में सारी शान शौकत दिखा रहा है। ये देखें जी पर्दे कैसे हैं, ये देखें जी चिप्स डाली हुई है, ये देखें जी हमारा महल कैसा है, ये सारा कुछ करता रहा है। लेकिन आखिरी दिनों में लिखा जब मैं नौशी कर रहा था, उसने अपनी वाइफ को, वश्ती मलका को मैसेज भेजा, क्योंकि मेरी बीवी खूबसूरत है उसको बुलाया जाए ताकि मेरे मेहमान हैं मेरी बीवी को भी देखें कि किस कदर खूबसूरत मेरी बीवी है। बीवी ने आने से इनकार कर दिया। किताबें खोली गई, अगर बीवी आने से बादशाह का इनकार करती है तो क्या करना चाहिए। लिखा है कि पहले जो उसके साथ काम करते हैं उनको भेजा, फिर किताबों के हवाले से, अक्लमंदों के हवाले से यह कहा गया मलका को घर से निकाल दिया जाए, दूसरी मलका का इंतखाब किया जाए। जब दूसरी मलका का इंतखाब किया जाए गया तो उसमें आस्तर मलका का चुनाव किया गया। और भी थी लेकिन आस्तर मलका जो है उसको एज ए मलका का खिताब दिया गया। अब चूंकि स्टोरी यह है कि यहां पर जो इसका कजन है, जो मल्क आस्तर का कजन है मर्दगी, ये भी वहां पर गेट पर काम करता है, पहरेदारों में से शामिल है। लेकिन जो किंग है उसके साथ हमान उसकी पोजीशन है, और वो जब भी गुजरता सारे झुक कर सजदा करते और तारीफ करते। लेकिन इस शख्स के मजहब ने, यहूदियत ने इसे सिखाया था किसी के आगे सजदा ना करना।
अब ये पोजीशन में होने के बावजूद ये शख्स को ये सजदा नहीं करता और ना उसकी ताजीम करता। इस वजह से मेरे अजीजों, इसने एक प्लान किया कि चूंकि ये यहूदी है और मैं बदला सिर्फ एक से नहीं लूंगा, मैं पूरी यहूदी कौम जो है उसको खत्म करवा दूंगा, क्योंकि बादशाह मेरे राइट हैंड पर है। लेकिन जब इस बात का पता चला तो इसने दरख्वास्त की, पिटिशन फाइल की है। लेकिन पिटिशन फाइल करने से पहले इसने एक काम किया है मेरे चीजों, जो हमारी दुआओं को उसके हजूर तक ले जाता है। और ये दरख्वास्त क्या थी कि मैं भी रोजा रखूंगी, मेरी सहेलियां भी रोजा रखेंगी, और जितने शोषण के इलाके के जूश हैं सब रोजा रखेंगे, टाट ओढ़ेंगे, रोजे रखेंगे। दुआएं की गई, आहो नाला मेरे अजीजों हो रहा है कि अनाउंसमेंट कर दी गई है कि 12वें महीने की 13वीं तारीख को पूरी जो जूश कौम है उसको हलाक कर दिया जाएगा, उनको कत्ल कर दिया जाएगा। लेकिन इसने दरख्वास्त की, इसी के दौरान इसके कजन के साथ, मर्द की के साथ इसकी मुलाकात होती है। उसने कहा आज तू इस पोजीशन में है, शायद खुदा ने तुझे भेजा है। वो कहती है जब तक बादशाह कॉल ना करे हम उसके दरबार में हाजिर नहीं हो सकते। अगर कोई बिन बुलाए जाए तो उसको कत्ल किया जाता है, मैं कैसे उसके हजूर में जाऊं। इसने मेरे अजीजों दरख्वास्त की, मर्द की ने इसे कहा कि तू इस तरह कर कि तू अगर हलाक होती है तो सारे के सारा जूश जो सिस्टम है वो भी हलाक होता है, लेकिन अगर तू बचेगी तो सबको बचा सकती है। इसलिए मेरे अजीजों इसने दरख्वास्त की है और लिखा है, उनको बुलाया, उनसे कहा कि बादशाह और उसकी दावत की जाए। जब ये दरबार में जो बादशाह है उसके हजूर जाती है तो बादशाह सुनहला आसा उठाता है। तरतीब ये थी कि अगर बादशाह सुनहला आसा उठाए तो इसका मतलब है कि वो आपकी जान बख्शी के लिए उठा है। उसने कहा आस्तर क्या बात है, आधी सल्तनत तुझे दिए देता हूं। उसने कहा नो मेरे साथ खाना खाना, और उस खाने में एक दिन लगा। फिर उसने कहा दूसरे दिन मैं बात बताऊंगी। दूसरे दिन ये बात बताई, क्या बताई थी कि मेरी और मेरी कौम की जान बख्श की जाए। इस औरत ने दरख्वास्त की है, इसने पिटिशन की है। सेम टाइम राइट अवे कुछ चीजों का जवाब नहीं आता, लेकिन इसने मेरे अजीजों चूंकि अपनी कौम के लिए पिटिशन की है, और पिटिशन के साथ जो कुलिया इसने यूज किया है उसमें दुआएं हैं, उसमें रोजा है। रोजा और दुआ करके आप अपनी पिटिशन उसके हजूर रखेंगे, लेकिन जवाब उसी वक्त आएगा जब बादशाह चाहेगा, जब खुदा चाहेगा। इसीलिए ये जो पिटिशनरी प्रेयर है ये अपने लिए भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसका जो मेन मकसद है दूसरे इंसानों के लिए, बादशाहों के लिए, बड़े रुतबे वालों के लिए जो दुआएं करते हैं मुकद्दसीन, उनके लिए, खादमों के लिए की जाएं। और इसके साथ साथ अगर हम ये पिटिशनरी दुआ उसके हजूर रखते हैं तो मेरे अजीजों ठहराए हुए वक्त पर खुदा जवाब देता है, और जब वो जवाब देता है तो वो फिर दुआएं मंजूर होंगी या नहीं ऐसी नहीं, वो उसकी तरफ से अटल होकर आपकी जरूरतों को पूरा करती है। जोरदार ताली बजाएंगे हम, हालेलुया। पिटिशनरी प्रेयर। सो आज पहले पॉइंट में हम देखेंगे कि दुआ मेरी कुड़ी ते मेरे मुंडे लिए नहीं होनी चाहिए थी। आपकी दुआ में ताकत कम हो जाएगी। ऐसा नहीं खुदा ऐसी दुआ नहीं कर सुनता, लेकिन किसी के लिए आपने प्रेयर करनी है, सब लोगों के लिए जिनकी जरूरत है। आपको दुआ के दौरान कई बार लोगों ने कुंडी मारी है को माइंड में आ भी गया ना, उसके लिए नहीं प्रेयर करनी। लेकिन अगर आप रियली प्रेयरफुल पर्सन बनना चाहते हैं तो उसका पहला कुलिया दूसरों के लिए दुआ करना है, बादशाहों के लिए, बड़े मर्तबा वालों के लिए, मुकद्दसीन के लिए और खादमीन के लिए, ताकि खुदावंद उनको जो डिसीजन करते हैं, कलाम देते हैं, उसका रूह उनकी मदद करे। दूसरा पॉइंट है जो प्रेयर, दुआ, रिलेशनरी प्रेयर। जो रिलेशनरी प्रेयर है ये भी थैंक्स गिविंग के साथ, रिश्ते वाली प्रेयर,
तो लक क्या है? मीनिंग ऑफ दिस प्रेयर मीन दुआ करना, दुआ मांगना, समाजत करना या नमाज। आप पता है दूसरे मज़हब वाले नमाज बस पढ़ते हैं, उसमें कुछ भी, वो नमाज जो है वो ऐसी अल्फाज हैं जिनमें उनके साथ कोई तलक नहीं, लेकिन उनका रिश्ता है, वो रिश्ते को मेंटेन रखने के लिए उस नमाज को पढ़ते हैं। ये है रिलेशनरी प्रेयर। टेल गॉड टू डू समथिंग इन एक्सप्रेशंस ऑफ थैंक्सगिविंग, कमिटमेंट टू अ लाइफ ऑफ होलीनेस थ्रू प्रेयर। अगर दुआ करनी है तो फिर पाकीज़गी में रहना है। हर गलत बात, हर गलत काम आप करके दुआएं करते रहें तो दुआएं कमरों के अंदर ही रहनी है, ऊपर नहीं जा सकती, उसमें होलीनेस रिक्वायर है। थैंक्स गिविंग विद गॉड, खुदा की शुक्रगुजारी करना। स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन बिटवीन ह्यूमन एंड गॉड, ये वाली प्रेयर जो है रिलेशनरी, ये है खुदा के और इंसान के दरमियान रिश्ता क्या है। जिनसे रिश्ता है उनका आप फौरन फोन उठाते हैं, जिनसे रिश्ता नहीं उतों ही कट देने, कई बार देखते हुए भी साइड पे रख देते हैं, पर जो घरों तो कॉल आती है देन यू पिक अप राइट वे, कोई एमरजेंसी ना हो। ये रिलेशनरी प्रेयर है, टू वे रिलेशनशिप, टॉक टू हिम एंड लिसन टू हिम। ये खुदा से बात करना और खुदा की सुनना भी। कुछ प्रेयर है हम बस खुदा को बताते जाते हैं, उसकी तरफ से सुने, जवाब तो उसने देना है। अगर आप फोन कॉल पे सिर्फ अपनी सारी बातें करते रहें और अगले की सुने ही ना, फोन कॉल कैसी है? ये रिलेशनरी प्रेयर जो है उसका है। टू वे रिलेशनशिप, फोकस ऑन गॉड हिमसेल्फ rather than on what you want from him। ये रिलेशन वाली जो प्रेयर है ना, फोकस ऑन गॉड हिमसेल्फ, खुदा को एक बड़े रुतबे वाला जलाली कदूसी बाप जानकर उससे प्रेयर करना, rather than on what you want from him, बजाय इसके मुझे क्या खुदावंद चाहिए, खुदावंद मेरी जरूरत क्या है। ये रिलेशन वाली प्रेयर, जब रिलेशन होगा मांगने की जरूरत नहीं है, रिलेशन होगा बेग करने की जरूरत नहीं है, रिलेशन है तो सब कुछ रिश्तों में निछावर कर देते हैं। मुझे याद है आज पास्टर मानुअल इधर नहीं है, तो कजन या बाबीवा के साथ जब भी जाना है तो उन्होंने कहा साहब जी $20 चाहिए देने, कभी उन्होंने बटवे से $20 नहीं निकाले थे, वो बटवा ही देते थे। भाई बशीर अलमास फर्स्ट कजन है हमारे, वो उन्होंने पास्टर मैनुअल को लेकर आए थे। उन्होंने कभी कहना सफदर यार पादी साहब ने कई जरा ग्रोसरी ले जाना है, $100 ते देवे। पादी साहब ने $100 नहीं दिया, उन्होंने बटवा ही देना है, उसमें क्या है या क्या नहीं। रिलेशन जहां है वहां मांगना नहीं पड़ता, और ये एक स्टेज है प्रेयर की जहां रिलेशनशिप में हम जाते हैं। रिलेशनरी प्रेयर जो है, जिसको निस्बती दुआ तो अलकाती दुआ शुक्रगुजारी के साथ करना। 2 कुरिन्थियों 6:17-18 वर्ष में लिखा है, इस वास्ते खुदावंद फरमाता है कि उनमें से निकलकर अलग रहो। उन कौन है? और नापाक चीज को ना छुओ, तो मैं तुमको कबूल कर लूंगा, तुम्हारा बाप हूंगा और तुम मेरे बेटे बेटियां होंगे। रिलेशन एस्टैब्लिश हो सकती है, लेकिन उनमें से निकलकर अलग रहो। अनबिलीवर्स की बात की गई। बहुत सा टाइम अगर आप अनबिलीवर के साथ स्पेंड करते हैं, आपकी रूह का सत्यानाश करके रख देंगे। अनबिलीवर, उनमें अट्रैक्शन ज्यादा है, अनबिलीवर में अट्रैक्शन ज्यादा है। उनसे निकलकर अलग रहो और नापाक चीज को ना छुओ, खामा ना उना दे। स्वादले खले कुर्बानी का गोश्त मना है, डू नॉट टच इट, डू नॉट ईट दैट। उनसे निकलकर अलग रहो, नापाक चीज को ना छुओ।
तो मैं तुमको कबूल कर दूंगा। रिलेशन बनाने का तरीका ये है कि जो खुदा की डिमांड है उसको पूरा करना, और जो हमारी डिमांड है उसको काटते जाना, कैंसिल करना। ये खुदावंद कादर मुतलक का कौल है, सेज द लॉर्ड। और यशायाह 64:8-9 वर्ष में लिखा है, तो भी है खुदावंद तू हमारा बाप है, यू आर आवर फादर। अब रिलेशनशिप जब बन गई है, दूसरा जो पॉइंट है रिलेशनरी प्रेयर जो है, ऐ खुदावंद तू हमारा बाप है, हम मिट्टी हैं और तू हमारा कुम्हार है, और हम सब के सब तेरी दस्तकारी हैं। तूने हम सबको क्रिएट किया है, बनाया है। ऐ खुदावंद गजबनाक ना हो और बदकरदारी को हमेशा याद ना रख। इसका मतलब है बदकरदारी जो है मेरी और आपकी खुदा की रिलेशनशिप में फर्क डालती है। कोई भी बात रिलेशनशिप को आप प्योर रखना चाहते हैं तो आपको अपने थॉट और डीलिंग प्योर रखनी पड़ेगी। कोई भी, चाहे खुदा के साथ है या इंसानों के साथ है। अगर आप बैक पे बातें करती हैं वो सुनी जाएगी, अगर आप बैक पे बातें करते हैं वो सुनी जाएंगी, क्योंकि रिलेशनशिप क्लीन रहनी चाहिए। अगर आपको खुदा से या इंसानों से मोहब्बत चाहिए तो यहाँ पे लिखा है हम तेरी दस्तकारी हैं। ऐ खुदावंद गजब ना कहो बल्कि बदकारी को हमेशा तक याद ना रख। देख हम तेरी मिन्नत करते हैं, हम सब तेरे लोग हैं। लोग बनने के लिए, रिलेशनशिप कायम रखने के लिए हमें उनमें से निकलना है। हमने उन बातों को छोड़ना है जो खुदा से हमें दूर ले जाती हैं। और यशायाह 65:24 में लिखा है, और यूं होगा जब रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाएगी, जब रिलेशनशिप मौजूद है तो यूं होगा कि मैं उनके पुकारने से पहले जवाब दूंगा और वो हनूज कह ना चुकेंगे, मैं सुन लूंगा। इंग्लिश में है, बिफोर दे कॉल आई विल आंसर। रिलेशनशिप में जो लिखा है ना, वो मांगने से पहले ही जानता है। ये उनके बारे है जिनकी रिलेशनशिप है। हर शख्स अपने ऊपर लागू करता जाता है हर चीज को। नहीं है रिलेशनशिप ठीक नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है ना। दुआएं हैं छोटी मोटी, और कई बार नहीं मेरे को तो कार भी है, तो गड्डी भी है, तो फलाना कुछ। ये दुनिया के लोगों के पास भी है। आपसे बेहतर चीजें दुनियादार लोग है। ये ब्लेसिंग नहीं है। ब्लेसिंग तो रिलेशनशिप में है कि आपके मांगने से पहले वो जानता हो। और क्या लिखा है, बिफोर दे कॉल आई विल आंसर व्हाइल दे आर स्टिल स्पीकिंग आई विल हियर। अभी वो दुआ कर ही रहे होंगे, अभी वो दुआ मांग ही रहे होंगे, तो मैं सुनकर उसका जवाब दे दूंगा। ये कुव्वत है रिलेशनशिप में। और ज़बूर 91 में लिखा है 14-15 वर्ष, चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं, इन मुसीबतों से, दुखों से, प्रॉब्लम से निकलना चाहते हैं, तो मुझे और आपको रिलेशनशिप क्लीन करने की जरूरत है। और उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा और क्या करूंगा, सरफराज करूंगा। उसका नाम, उसने मेरा नाम पहचाना है, वो मुझे पुकारेगा, मैं जवाब दूंगा, मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा। दूसरा ये है, ऐसा भी नहीं कि अगर हम खुदावंद से प्यार करते हैं हमारे ऊपर कोई मुसीबत नहीं आ सकती, बीमारी नहीं आ सकती। मेरे अजीजों, ये तो बदन है, ये गुनाह से बड़ा है, इसलिए मुसीबत किसी पे भी आ सकती है। लेकिन खुदा का वादा है, अगर तेरे साथ मुसीबत में तू होगा तो मैं तेरे साथ हूंगा। मुसीबत में खुदा आपके साथ खड़ा हो जाएगा, मैं उसे छुड़ाऊंगा, इज्जत बख्शूंगा। यूहन्ना 11:41 में लिखा है, बस उन्होंने उस पत्थर को हटा दिया। फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, ऐ बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने मेरी सुन ली। दुआ तो की नहीं यीशु ने अभी। कितनी बार आपने देखा है बदरूहों को निकालते हुए यीशु मसीह ने घंटा दुआ की थी, तो बदरूह निकली है। ये हमारी वीक बॉडी जो है उसके लिए है। यीशु मसीह हुक्म दे रहे हैं, बस वजह क्या है, खुदा के साथ मिलाप है, खुदा की मर्जी को अपनी जिंदगी में पूरा कर रहे हैं। उनसे निकल कर अलग रहो
तो मैं तुम्हारा बाप हूंगा और तुम मेरे बेटे बेटियां होंगे। जब रिश्ता कंप्लीट आप करना चाहते हैं तो वो सारी चीजें जो खुदा को नाराज करती हैं मुझे और आपको छोड़नी है, तब हम उसके लोग होंगे। फिर यूं होगा कि मैं दुआ कर रहा हूं, आप दुआ कर रहे हैं, अभी दुआ में आपने आमीन नहीं किया, आपके आमीन करने से पहले खुदा जवाब दे देगा, क्योंकि रिलेशनरी प्रेयर जो है इसमें रिश्ता है, रिलेशन वाली प्रेयर जो है इसमें तौल्लक है, रिलेशन वाली प्रेयर में जज्बात हैं, इमोशंस हैं, केयर है। इसलिए खुदा का कलाम फरमाता है वो कह ना चुकेंगे तो मैं उन्हें जवाब दूंगा, मुसीबत में उनके साथ होऊंगा। और यही यीशु मसीह जब मेरे अजीजों लाजर की कब्र पर जाते हैं तो क्या लिखा है, उसने क्या कहा, बस उन्होंने उस पत्थर को हटा दिया। यीशु मसीह जो जमीन आसमान का मालिक है, पत्थर तो वो भी हटा सकता था। उन्होंने जो वहां थे उन्होंने पत्थर को हटाना है। और ये पत्थर नफरत का पत्थर है। अगर नफरत है दिल में, कोई रिलेशन नहीं है, अगर जलसी है रिलेशन नहीं है, अगर मगरूरी है रिलेशन नहीं है, शहवत परस्ती, नाराजगी, गुनाह, नशा, झूठ, लालच, चोरी, खुदगर्जी, चुगली, दगाबाजी, फरेब, बुत परस्ती, ये पत्थर हैं। अगर ये पत्थर मैं और आप लिए फिरते हैं और दुआ करना चाहते हैं, स्टॉप इट, That's not your job. अपने आप को ठीक करने की जरूरत है। और जब ठीक होंगे रिलेशन क्लियर हो जाएगी। जब रिलेशन क्लियर हो जाएगी तो फिर हम कह ना चुकेंगे तो वो जवाब देगा, हमें में ये सारी कमियां पाई जाती हैं, लेकिन इस पत्थर को हटाना हमारा काम है, इस मगरूरी को हटाना मेरा और आपका काम है, इस नफरत को हटाना मेरा और आपका काम है, इस बुग़्ज़ को हटाना मेरा और आपका काम है, इस चुगली को हटाना मेरा और आपका काम है। जब ये चीजें हमारी जिंदगी से हट जाएंगी तो लिखा है रिलेशनशिप क्लियर हो जाएगी। जब पाइपलाइन क्लियर है तो किसी बात का फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि रिलेशनरी प्रेयर तब सुनी जाएगी जब मेरा और आपका रिश्ता खुदावंद से मजबूत है। रिश्ता ना होने से नहीं सुनी जा सकती। और ये हमारा एक्सपीरियंस है, साल हर साल हमारी दुआएं नहीं सुनी जाती। उसकी वजह यह है पैटर्न के ऊपर हम कायम नहीं हैं। तीसरी जो बात है वो है रिक्वेस्टनरी प्रेयर, मिन्नत, इल्तिजा करना, और वो भी शुक्रगुजारी के साथ, रहम मांगना खुदा से, मुल्तजी होना, इस्तदा करना, किसी चीज के लिए दुआ करना। और ये है हाथ फैलाकर इसको दुआ कहते हैं, ऐसे, खुदावंद मैंने तेरा गुनाह किया है, मुझे माफ फरमा। ये है रिक्वेस्ट जो खुदा से की जाती है। प्रेयर फॉर हेल्प, मदद के लिए दुआ मांगना, asking other to join you in prayer। ये एक ऐसी प्रेयर है जिसमें आप दूसरों को अपने साथ शामिल करके कर सकते हैं। प्रेयर रिक्वेस्ट कैन बी स्पोकन और अनस्पोकन। कई बार आप अपने ही अपनी प्राइवेसी लोगों को बताना चाहते हैं, कोई बात नहीं, स्पोकन अनस्पोकन प्रेयर हो सकती है बिब्लिकली, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन और प्राइवेसी ऑफ द इश्यू। बाइबल encourages us to pray and be thankful in everything। खुदा ने हमें जो कुछ दिया है उसके लिए शुक्र। जो कंप्लेने करता है ना बहुत ज्यादा, वो शुक्रगुजार शख्स नहीं है। जिसकी कंप्लेन खत्म नहीं होती वो थैंकफुल नहीं है। थैंकफुल वो है कैसे भी हालात क्यों ना हो, खुदा की शुक्रगुजारी करे। Bible encourages us to pray and be thankful in everything। आप लिस्ट जरा लगाएं, जरा खुदा ने क्या क्या आपको दिया है, और एक छोटी सी बात हो जाए हमारी कंप्लेन शुरू है। वाई? क्योंकि हम शुक्रगुजार उन चीजों के लिए नहीं हैं जो मिलती जाती हैं। रिक्वेस्टनरी प्रेयर, यू कैन प्रे फॉर
हेल्थ, ये एक ऐसी प्रेयर है जिसमें आप अपनी सेहत के लिए, तंदुरुस्ती के लिए दुआ कर सकते हैं, अपने ख़ानदान के लिए दुआ कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के लिए, फैमिली के लिए दुआ कर सकते हैं, अपने जॉब के लिए, अपने फाइनेंस के लिए दुआ कर सकते हैं. गॉड गाइडेंस एंड विजडम, खुदा की जो गाइडेंस है और उसकी हिकमत हासिल करने के लिए ये दुआ कर सकते हैं. लेकिन ये दुआ तब सुनी जानी है जब पहले वाली दोनों दुआएं अलाइनमेंट में होंगी. तो पहले वाली पिटिशनरी और दूसरी वाली रिलेशन वाली, और तीसरी ये है जो रिक्वेस्ट है. तब रिक्वेस्ट मलका की शादी हो चुकी है तो रिक्वेस्ट मानी गई है. अगर आस्तर मलका की शादी अभी नहीं हुई या महल में नहीं पहुंची तो जितनी मर्जी रिक्वेस्टें करती, बादशाह की मर्जी है उस रिक्वेस्ट को सुनकर उस पर अमल करे या ट्रैश में फेंक दे. ये वाली दुआएं हम खुदा से कर सकते हैं, लेकिन पहली दोनों पे अमल करना जरूर है. लव, पीस एंड हैप्पीनेस, इसके लिए हम दुआएं कर सकते हैं. तीसरा जो है रिक्वेस्टनरी प्रेयर, मिन्नत समाजत, ये भी शुक्रगुजारी के साथ. यूहन्ना 15:7 में लिखा है, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो कुछ मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा. If you remain in me and my word remain in you, whatever you desire, I will be done for you. मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा. किस लिए? अगर तुम मुझ में कायम हो और मैं तुम में कायम रहो और मेरा वर्ड जो है, मेरी बातें तुम में कायम रहें. और याकूब 5:16 में लिखा है, बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो. फिर एक दूसरे के लिए, अगेन घर वाली पर्सनल प्रेयर, अपने लिए सिर्फ मेरा है तो मेरा है, उससे निकले मेरे अजीजों. अगर आप रियली चाहते हैं खुदा से ब्लेसिंग लेना तो फिर क्या लिखा है, एक दूसरे. जो अगर आप दूसरे के लिए नहीं कर, ये तो खुद गर्जी की दुआ है कि मुझे ये दे दे, मुझे ये दे दे. दूसरों के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ. ये देखें, ये वाली दुआ से हीलिंग है साथ कनेक्ट. अगर हम दूसरों के लिए दुआ करते हैं, अगर दूसरे का मसला है, दूसरे का कैंसर है, दूसरे की बीमारी है, दूसरे के बच्चे नहीं हो रहे, दूसरे का कोई भी इश्यू है, उसके लिए दुआ करें. आपके नहीं हो रहे, उसके लिए दुआ करें. खुदा आपके रहम को खोलेगा, क्योंकि आप वो कर रहे हैं. असल में चूंकि हम नहीं करते इसलिए हम नहीं पाते. एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ. रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है. प्रेयर ऑफ राइटियस पर्सन हैज ग्रेट पावर. बड़ी ताकत है जो रास्तबाज इंसान है उसकी दुआ में. और ज़बूर 86:7 में लिखा है, ऐ खुदावंद मेरी दुआ पर कान लगा और मेरी मिन्नत की आवाज पर तवज्जो फरमा. ये मिन्नत जो की है, ये इल्तिजा, ये दरख्वास्त जो मैंने तेरे सामने रखी है, उस पर तवज्जो कर, क्योंकि तू मुझे जवाब देगा. यू आर द ओनली, तू ही है जो मुझे जवाब दे सकता है. और ज़बूर 107 की 6 आयत में लगा, तब अपनी मुसीबत में उन्होंने खुदावंद से फरियाद की और उसने उनको उनके सब दुखों से रहाई बख्शी. मुसीबत में खुदा से दुआ की, सारे दुखों से रहाई बख्शी. लेकिन ये मुसीबत में दुआ करने से पहले पहली दो दुआएं जो हैं वो बहुत जरूरी हैं. और मरकस 10:46 में लिखा है, और वो यरू में आए और जब वो और उसके शागिर्द और एक बड़ी भीड़ यरू से निकलती थी तो तमाई का बेटा बरतमाई अंधा फकीर राह के किनारे बैठा था. तमाई का बेटा बरतमाई. तमाई का मतलब होता है अंधा, अंधे का बेटा अंधा राह के किनारे बैठा है. तमाई का बेटा बरतमाई, अंधे का बेटा अंधा राह के किनारे बैठा है. ये सुनकर के यीशु नासरी है, चला चला कर कहने लगा, ऐ इब्ने दाऊद, ऐ यीशु मुझ पर रहम कर. और बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, मगर वो और भी चिल्लाया, shouted louder, ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर. ये इल्तिजा वाली है.
یہ رحم کی اپیل ہے. خدا کے آگے ہاتھ پھیلاکر میں نے اور آپ نے اس دعا کو کرنا ہے. اے یسوع، اے ابن داؤد، مجھ پر رحم کر. یسوع نے کھڑے ہو کر کہا اسے بلاؤ. پس انہوں نے اس اندھے کو یہ کہہ کر بلایا کہ خاطر جمع رکھ، اٹھ، وہ تجھے بلاتا ہے. درخواست کی ہے، یسوع نے کہا بلاؤ. التجا کی ہے، یسوع نے کہا بلاؤ. یسوع نے کہا تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں؟ اندھے نے اس سے کہا اے ربونی، یہ کہ میں بینا ہو جاؤں. ربونی مین ٹیچر، میسٹر، اریمک ورڈ ہے ربونی. یہ میری درخواست ہے کہ میری بھی آنکھیں کھل جائیں، میں بھی دیکھنا شروع کر دوں. یسوع نے اسے کہا جا، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر دیا. وہ فی الفور بینا ہو گیا اور راہ میں اس کے پیچھے ہو لیا. Immediately he received his sight right away. اس کی آنکھیں کھل گئی ہیں. اب باپ بھی اندھا ہے، آگے سے بیٹا اندھا ہے. اگر نسل در نسل یہ گناہ چل رہا ہے، نسل در نسل اگر یہ بیماری چل رہی ہے، نسل در نسل اگر یہ شوگر چل رہی ہے، نسل در نسل اگر بلڈ پریشر چل رہا ہے، نسل در نسل اگر خاندان میں ڈیورسز چل رہی ہیں، نسل در نسل اگر خاندان میں جھگڑے چل رہے ہیں، نسل در نسل اگر خاندان میں یہ ساری علتیں ہیں جو کلام کے خلاف، دنیا کے خلاف ہیں، تو کیا لکھا ہے؟ مجھے اور آپ کو یسوع کو پکارنے کی ضرورت ہے. کیا لکھا ہے؟ اے ابن داؤد، اے یسوع مجھ پر رحم کر. اس نے التجا کی ہے، ریکویسٹنری پریئر جو ہے، اس نے درخواست کی ہے. یسوع میں دیکھنا چاہتا ہوں، میری آنکھیں بند ہیں، مجھے اپنے حضور میں یاد فرما. میرے خاندان کی آنکھیں کھول تاکہ وہ ڈیورسز جو نسل در نسل خاندان میں چل رہی ہیں رک جائیں. کیونکہ جب تک میں اور آپ ریکویسٹ نہیں کرتے، پہلی دونوں باتوں کو لے کر تیسری بات جو مجھے اور آپ کو کرنی ہے وہ ریکویسٹ ہے. اگر تم مجھ میں قائم رہو تو میں تجھ میں قائم رہوں گا. اور پھر کیا لکھا ہے؟ ایک دوسرے کے گناہوں کا اقرار کرو. مجھے اور آپ کو اپنی لسٹ کلین رکھنی پڑے گی. ہر ایک سے سلام کرنا، ہر ایک سے تعلق رکھنا، ہر ایک سے بات رکھنا. کچھ بھی دل میں رکھ کر ہم دعا کرتے ہیں تو وہ فضول ہے، وہ بے فائدہ ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں. ہم مسلم لوگوں کی طرح ہماری دعائیں، نمازیں ہمیں کوئی بھی کسی قسم کا بھی اجر نہیں دے سکتی. میری اور آپ کی دعا اجر دیتی ہے تو وہ صرف مجھے اور آپ کو پرسنل ریلیشن بنانے کے ساتھ ملیں گے. اس لیے لکھا ہے راست باز کی دعا سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. راست باز کی دعا سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. اسی لیے یرو میں یہ بھیڑ ہے اور یہ اندھا فقیر جو ہے کنارے بیٹھا ہے راستے، لیکن اس کی ایک ڈیمانڈ ہے. نسل در نسل اس میں یہ گناہ چل رہا ہے، نسل در نسل یہ کرس چل رہی ہے، نسل در نسل یہ لعنت چل رہی ہے. لیکن جب یسوع آ گیا ہے، اس نے اس کی آنکھیں کھول دی ہیں. اور میرے عزیزو یہ دیکھنا شروع کیا. جب اس کا موعظہ ہوا ہے تو لکھا ہے immediately he received his sight and followed Jesus along the road. میرے اور آپ کے لیے کئی بار شفائیں ہوئی ہیں، میرے اور آپ کے لیے کئی بار خدا نے فضل کیا ہے. لیکن جب ہمیں شفا ہو جاتی ہے، یسوع کون اور میں کون؟ یہاں پہ یہ اندھے فقیر نے یسوع کو فالو کیا ہے، یسوع کے پیچھے پیچھے جاتا ہے. وہ ہیکل میں جاتا ہے تو ہیکل میں جاتا ہے، یسوع شاگردوں کے ساتھ وہاں جاتا ہے. میں اور آپ اگر اس ہیلنگ کو قائم رکھنا چاہتے ہیں تو میری بہن، میرے بھائی، جب یسوع نے کبھی بھی رحم کیا ہے تو یسوع کو نہ چھوڑیے. عبادتوں میں جائیں، گھر میں دعا کریں، زبور گائیں، گیت گائیں اور خداوند کے لوگوں کے ساتھ رفاقت رکھیں. درخواستی پریئر، پٹیشنری پریئر آستن نے کی ہے، قوم کو بچایا ہے. میں اور آپ بھی کر سکتے ہیں. ریلیشنلی پریئر، لازر کے لیے یسوع کا رشتہ ہے. تو پہلے ہی سنتا ہے، تجھے تو پہلے ہی پتا ہے. یسوع نے کہا ہے پتھر کو ہٹا دو، لازر باہر نکلا. لازر اسی وقت نکلا ہے. ریلیشن ہے تو آپ کی آواز سنی جائے گی. اور تیسرا ریکویسٹنری پریئر جو التجائی پریئر ہے، تمائی کے بیٹے برتمائی نے پکارا ہے اور یسوع مسیح نے رائٹ اوے آنکھیں کھول دی ہیں، نسل بدل دی ہے، قرض توڑ دی ہے.
میری اور آپ کی زندگی میں بھی یہ ہو سکتا ہے اگر ہم اس پیٹرن کو لے کر چلتے ہیں کہ جب خداوند کے حضور گھر میں اس کے ساتھ وقت گزارتے ہیں تو ان تینوں چیزوں کو غور کیجئے گا کہ جو درخواستیں، کیا جی حوالہ، کسی بات کی فکر نہ کرو بلکہ ہر بات میں تمہاری درخواستیں دعا منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائے. جب شکر گزاری سے پیش کریں گے خداوند آسمان کو کھول کر ہماری دعاؤں کو جواب دے گا. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بنا. آمین. تھینک یو.